Good evening, all of you. I, CA Piyush Chandak, welcome all of you on behalf of Nashik Vikasa. I welcome all the participants and WIC Chairman Sir CA Manishji Gadia, Vikasa Chairman CA Yashwantji Kasar Sir. I also welcome Chairman and Chairperson of each branch who have joined us with open hands for this program, namely Ahmednagar branch. From Ahmednagar branch, CA Pawan Kumarji Darak, CA Rupali Bothra from Aurangabad branch, CA Deepakji Agrawal from Akola branch, CA Pawanji Jaju from Amravati branch, CA Rachendraji Mundada from Dhule branch, CA Mukeshji Malani from Ichalkaranji branch, CA Vikkiji Birla from Jalgaon branch, CA Sushantji Gundale from Kolhapur branch, CA Rajeshji Agrawal from Jaipur branch, CA Kunalji Malpani from Nanded branch, CA Umeshji Mali from Sangli branch, and CA Rushikeshji Wangde from Satara branch. Thanks all of you for joining us to this program. And before going further, I'll just give a brief idea and a motto about this program in brief. Actually, this 10 days course is planned to give all the participants a basic idea, a basic knowledge, and in the form and working knowledge in the form of concepts, various forms to be filled online, like exemptions, how to find out exemptions, how to find them, rate of taxes of each goods using live website of the government, that is GST website and CBIC website. And this course should be useful to those who are actually very new to the GST or who are doing articleship and are working in offices, and to make them aware about each online forms to be used and how those are to be filled. I'm thankful to our managing committee members of Nashik branch and Vikasa chairman of all the branches who have helped us in arranging this program. I am also thankful from the bottom of my heart to CA Manishji Gadia sir and CA Yashwantji Kasar, who has also supported well for this program. And I should mention the efforts of our branch employees about arrangement of this program as well. And with this, I request CA Manishji Gadia sir to give his opening remarks. Thank you, Piyush. First of all, I thank all 13 branches, Vikasa, who came together to guide the student, especially on a topic like GST, which is really very complicated topic and very difficult to understand. If you read the act is very small. An act is also into three parts: CGST, SGST, and IGST. So first of all, you have to read 3 acts. Then you have to read 3 rules from 3 acts. Then different notifications. Central government issues notification for CGST and state government issues notification for SGST. And for IGST, notification are issued under IGST. So these are the 3 different notifications to be issued on single point many times. Then again a circular. And then the circular issued may be withdrawn later on. Notification issued, then again amendment, re-amendment, re-amendment, re-amendment. So then keep a track of the same. So it's not so simple, but at the same time, it is also not so complicated also. So it is very, very important for all the students, for all the practitioners to first understand and do not go to the Google for searching the provisions. You have to go through yourself, read the provisions, read the law. Because what mistake we are doing is always we are reading the interpretation, maybe by Deepak Agrawal, on some GST matter given by him 2 years before. After that, some notification may came and that provision has maybe changed, and you are following this old notification, old interpretation. So it is always better to read the law, act, rules, notification, and then you have to interpret your own instead of interpretation given by any other third person. So that is the basic concept in any law, has to be followed. And as far as GST is concerned, it is a transaction based tax. It means
before going to law, you have to understand the transaction. Many chartered accountant, many student in my office also articles comes to me and saying, sir, इस provision में ये लिखा है. But my first question to them always is, what is the transaction? Your starting point should be understand the business transaction. Then you have to implement the law. So this is the way what we have to do in our practice. We have to understand and then we have to proceed further in GST. It is very, very important. So I congratulate and I thank all 13 Vikasa coming together for sharing knowledge among students on the practical aspect, how to practically implement GST law is really a need of the hour and very, very, very important. So thank you very much. And I hope that this will continue in future. Yashwant Kasar and myself was discussed couple of times that we will come out with one or two program on a regular basis where all 35 branches of Vikasa along with WIRC Vikasa, we will have one program for the student together, where the involvement of student will also be there as a paper presenter in that program. And they may present a paper for 10 minutes. The session may be of 1.5 hours. The balance session may be taken by a chartered accountant. That's what we are planning. Yashwant will give the detail to all the Vikasa chairmen once it will be structured, and definitely we will take it forward this project. So thank you very much. Over to you, Piyush. Thank you very much, sir, for your kind words. Thanks a lot. And it is really a good idea, sir, to have a regular program on GST with the student. I would like to come to our Vikasa, beloved Vikasa chairman of WIRC, CA Yashwantji Kasar, sir, for his opening remarks. Thank you, Piyush bhai. Dear friends, a very good evening to all of you. CA Manish bhai Gadia, the chairman of WIRC. I can all the chairman of all the 13 branches of Vikasa. I can see on the screen Deepak bhai is here, Pawan bhai is here. I can see Rishikesh. Yes, Piyush ji already here. Then Kunal bhai I can see. I think I can see only those many chairmen on the screen and all those who are present, but I am not able to see on the screen right now. Our faculty for this GST workshop, Mr. Palak Dedia. Friends, this is really a good initiative taken by all the 13 branches for this GST course. And I was going through the coverage of this course. It is covering the basic concepts of GST and then practical tips on using the GSTN portal as well as CBIC portal. And that is very important, my friends. As Manish bhai mentioned in his address, that while understanding or learning GST, you should try to understand what is the transaction first. And then you will be able to find out what will be the implication of GST on that transaction. So always first try to understand what is the transaction. As the GST is a destination-based tax, then there is a concept of ITC and all that. So all these concepts we must understand first. Manish bhai stated that you have to learn the CGST Act, then SGST Act, then there is IGST Act, there are UTGST Act, there are notifications, there are circulars. All these things are there, but we must learn to simplify the things first. Definitely your faculty will be explaining all these concepts in a very simplified manner to all of you. If you ask me, the best thing to understand the GST, just keep in mind, in GST, first learn CGST Act, 174 section. Out of those 174 section, 50 are just only are, I would say only 50% of those 174 sections are really important section which you need to understand, and then 25 sections of IGST Act. All the SGST Act and UTGST Acts are exact replica of this CGST Act.
So you have to learn those 174 section, 3 schedules and 25 sections of IGST Act. Then when it comes to notifications and circulars, definitely those have made our job difficult, because and for that I would always my recommendation is always refer to the CBC website, CBIC website for the latest one. And because there are thousands, more than 1,000 notifications issued till now, till the since the implementation of GST. So what type of transaction you are looking at, which industry it is relates to. So depending on that, you have to refer the notification. But once the conceptually you are clear in GST, and once you know the practical aspects of using GST and how the flow of forms is there, Sir, I think you are on mute by mistake. yeah. So am I audible now? Yes, sir. Yeah. So once again, I congratulate all the 13 branches for organizing this useful course on GST. As Manish Bhai mentioned in his speech, at Vikasa, we are planning 2 courses jointly with research, means 2 are in just pipeline for planning, and then we will definitely organize few more in months to come. But I will just announce about 2 courses. In the next month, we will be organizing one DTPC, direct tax practice. As we organize DTRC for CA members, for CA students of all the 35 branches, we will be organizing DTPC course and then IDTPC course. So this will be held by the Vikasa along with all the 35 branches of Vikasa. So my appeal to all the students, do enroll for that course as well once we announce it, and that will be really a good learning for all of you. One announcement to make, as this is the pandemic times, I hope all of you are taking good care of yourself and your family members. Do take the good care of yourself and all your loved ones. Friends, that day we had our Vikasa orientation program of all the 35 branches, and the BOS operations chairman was there. And in his address, he stated about underutilization of scholarship grants of ICAI. So you must be knowing that for the needy students, ICAI has a policy of scholarship. So my appeal to all the 13 branches as well as the students, if you are a needy student, if you qualify for that scholarship, or any of your friend you think might be in need of that scholarship, do reach out to your Vikas chairman and the branches so that you can take the benefit of that scholarship program of ICAI. So friends, that's all from my side. Once again, I congratulate all the 13 branches for organizing this course, and I wish all of you happy learning. Thank you very much. Thanks a lot, sir. Thank you very much. And we will definitely see to it that, sir, the Vikasa program, which you have announced recently of TPC and great learning for all of us. And we will also see that the maximum and eligible beneficiaries should reach to the scholarship program of the institute, sir. Thanks a lot, sir. And with this, I request Rahul, if Rahul is there. Okay, he has put a message. Sir, Rahul is not able to join. Now he has joined, sir. Right. Rahul, are you there now? You can unmute yourself, Rahul. Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible now. Okay, sir. So first of all, good evening. Good evening to all. I am here to give the speaker's intro. So Falak Dedia, CA Falak Dedia, a tax professional having an overall experience of more than 9 years into indirect taxation and international taxation. His expertise has been into industries like quick service restaurants, shipping, logistics, and manufacturing. Since over 7 years, he has been serving and teaching not only CA, but CS, MBA, but also students from non-commerce background.
He has been having a keen interest in learning the practical concepts of VAT, service tax, LBT, and now GST. He's continuously providing trainings to clients and their employees on GST and keeping them updated with all the amendments and circulars. His passion for teaching has made many working professionals self-reliant. So I'm very glad to have such a personality with us. So I would like to hand it over to Falak sir. Hello guys, thank you Rahul ji for the introduction. Thank you. I would first of all thank you CA Piyush Chandak ji, the chairman of the Nasik Vikasa, to give me an opportunity to give my training to the students who actually want to learn on the GST. So thank you Piyush sir for the opportunity, and also to all the chairmen of the respective branches for believing in me, for having a trust on me to allow me to give to such a large students here. I would like to thank you each and every chairman of the branch joined here on the Zoom call. Thank you sir. Okay, so sir, I can start. Yes, Palak ji, you can start. Would you like to check your screen sharing option first? Yeah, I would change as soon as I will start. That is not an okay. All yours. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Hello guys. Good evening. As you all know, मेरा नाम है पलक डेडिया. सर जैसा आपने सजेस्ट किया था एट द एंड ऑफ द सेशन, जो लोग इंटरेस्टेड है हम उनसे उनका ओपिनियन, उनका रिव्यू जरूर लेना चाहेंगे. सो अगर आप लोग वन बाय वन हैंड्स अप करते हो ना, तो हम लोग आपको एक एक करके अनम्यूट करेंगे सो दैट कि केओस नहीं होगा. टाइम लिमिट होगा 1 मिनट ही आपको बात करनी है ताकि हम कवर सब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट को कवर कर सके. सो रिक्वेस्ट है 1 मिनट ही आप करके फिनिश कर दें. ओके ओके ओके. सर हम शुरू करेंगे ध्रुव से. ध्रुव है जिसने अभी तक बात नहीं की है ना, इसलिए यस सर, आपको अनम्यूट करना है ध्रुव जी. सर आपको अनम्यूट नहीं हुए हैं, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट कर रहे हैं ना, तो आप अपना अनम्यूट कर लीजिए एक बार. हाँ हो गया. हाँ या गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग ध्रुव जी. कहाँ से आप? सर शिमला. शिमला से. क्या बात है, जलसा. अरे सॉरी, गोवा का एग्जांपल दिया मैं तो, इधर शिमला वाले बैठे. सो आर यू वर्किंग? आर्टिकल से कर रहा हूँ सर. ओके ओके गुड. 1 ईयर कंप्लीट हो गया है. ओके ग्रेट ग्रेट. यस सर, बहुत ही हेल्पफुल हुआ सर ये जो कोर्स था मेरा 10 डेज का, क्योंकि ये एग्जामिनेशन है जुलाई में और थ्योरेटिकल तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ है मेरा. प्रैक्टिकल में जैसे जीएसटी रिटर्न्स है, आपने आईटीसी कैसे क्लेम करना है, सारा एडजस्ट कैसे करना है, वो सारा हेल्पफुल हुआ है. और मुझे लैंग्वेज जो है कि इंग्लिश में भी हुआ, हिंदी में भी हुआ, और सर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है. सबसे बेनिफिट तो ये प्रैक्टिकल करके दिखाया, बाकी कोई तो आज की डेट में दिखाता नहीं है. ओके ओके, थैंक्स अ लॉट. बाकी तो सब कुछ ठीक रहा. थैंक्स अ लॉट सर. हम थैंक यू सर. आपको एग्जाम के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से. थैंक यू सर. एंड अगर गोवा का एग्जांपल से दुखी हो तो सॉरी भाई, शिमला का भी एग्जांपल बहुत बढ़िया है. हाँ जी सर. चलो ग्रेट. थैंक यू थैंक यू. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक्स अ लॉट. मैं मुकेश, सॉरी ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं आप? हेलो. 1 मिनट मुकेश जी, 1 मिनट. ध्रुव जी आप कुछ बोल रहे थे?
ठीक है. It's okay, okay, चलो. ओके ध्रुव जी, सॉरी. ओके मुकेश जी बोलिए. गुड इवनिंग फ्लग सर, पीयूष सर. Good evening, मुकेश जी, आप कहाँ से हैं? सर बिहार से हूँ मैं. ओहो, क्या बात है. ग्रेट ग्रेट. सर मेनली मैं तो लगभग मैं 2 साल से आर्टिकलशिप कर रहा हूँ. डायरेक्ट एंट्री से लिया हुआ था तो मेरा एक ग्रुप क्लियर था. उसके बाद से जब से भी आर्टिकलशिप कर रहा हूँ तो लगभग मुझे सिर्फ टैक्सेशन का नॉलेज जा रहा था, क्योंकि मुझे बैक ऑफिस क्लाइंट को भेज दिया जाता था. और अभी जब क्या है ना कि मेरे सीनियर लोग अभी छुट्टी में चले गए हैं कोविड के टाइम पे, तो जीएसटी का काम मुझ पे आ गया है. तो उतना प्रैक्टिकल नॉलेज था नहीं, लेकिन इस टाइम में देखा कि आप जब आप लोगों का ये जो आया कि क्लासेस करवाना है 10 दिन का, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो गया प्रैक्टिकल नॉलेज की वजह से. अभी मतलब काम तो कर रहा हूँ 2 महीने से, तो अभी मतलब चीजें सारी बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, अच्छा लगता है सर. बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच सर ये सब चीज करने के लिए. थैंक यू. अच्छा लगता है सर कि जब बेनिफिट मिलता है सबको. मेनली सर क्या है ना कि 2 महीने से कर रहा हूँ तो उतना ज्यादा क्लियर नहीं था, और सभी सीनियर जो कर रहे थे पहले से वो लोग अभी है नहीं काम पे, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिला इसके. अच्छा तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है सर. अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला. राइट. हाँ जी सर. अच्छा, Thank you. अभी सर हर्षदा जी से रिक्वेस्ट करेंगे, हर्षदा जोशी. Yeah. हम पहले उनको प्रेफरेंस दे रहे जो जिसने भी अभी तक बोला नहीं है. जिसने बोला है बुरा मत लगाना, हम आपको भी टेंशन मत लें. हाँ. हेलो ये सर. हर्षदा जी, बोलिए. हर्षदा जी कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद. औरंगाबाद. ओके, ओके सर, वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ब्रांच. करेक्ट. Thank you sir for conducting this program, and it's helpful for me and my GST syllabus के लिए बहुत है. मतलब GST थ्योरी में तो बहुत पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं. इस प्रैक्टिकल का नॉलेज आ गया, अब इम्प्लीमेंट कर रही हूँ. थैंक यू सर. वेरी गुड. जब भी आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो अच्छे से काम करिए, तो आपको इसको Yes, sir. फायदा असल में हुआ ऐसा हमको भी लगेगा और आपके प्रिंसिपल को भी लगेगा. यस सर. ओके, नाइस नाइस नाइस. थैंक यू. सर नेक्स्ट अर्चना मैडम को ले लें. अर्चना. यस यस. हेलो सर, एक्चुअली मैं बीड़ से हूँ, मतलब लाइक मैं पुणे में पढ़ती हूँ. मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रेकमेंड किया था, हमने अभी आर्टिकल चालू की तो, और 1 मंथ मैंने ऑफिस में काम किया और उसके बाद वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, तो आई वाज लाइक क्या करेंगे. जब मतलब मैं जीएसटी टीम से हूँ, बट 1 मंथ में कैसे सिखाया हमको, मतलब टेम्पलेट ये भरना सिखाया, लाइक बताया कि क्या रहता है बेसिक, बट पता ही नहीं है कि मतलब मेन क्या है, आईटीसी को किस में लेना है, इनएलिजिबल कब हो जाता है. तो आपके वजह से बहुत कुछ समझ आया सर. और हर एक बात अगर सीनियर को कॉल करके पूछे तो अपने को भी ऐसा लगता है कि आप उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सर, बहुत हेल्प हुआ आपकी क्लासेस की वजह से. थैंक यू. मेरी वो फ्रेंड को भी थैंक यू. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक आप अच्छे से काम करिए आप भी, तो आपके बॉस को भी लगना चाहिए कि विकासा कुछ करता है सब सीएस के लिए भी. ओके. सो प्रणव जी, प्रणव पारख. यस. वॉइस नहीं आ रहा है प्रणव. वॉइस नहीं आ रहा है. अनम्यूट तो हो गए हो, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है. अनम्यूट हो आप. हेडफोन निकाल के बात करो, मे बी शायद हेडफोन की वजह से नहीं आ रहा हेडफोन है. निकाल दो, मोबाइल डायरेक्ट कैच करता है अच्छे से. Sir, am I audible? नाउ ऑडिबल. Yes, good evening, sir. I am from Aurangabad, myself, Pranav Parak. Okay. Thank you, Piyush sir, and all respective branch of Vikasa to arrange such great program. And a special thanks to Falak sir to arrange these sessions. The sessions were pretty good. The main part of the session that I feel is to build an habit of finding your solutions for your problem from the act and not from the Google. Actually, I also used to find my solutions in office from the Google only, and I was never satisfied
from that solutions. So thank you, sir, to arrange these sessions, and a request to Piyush sir for in future also. I hope that you will arrange practical session on aspect of DTA as well. श्योर प्रणव। पलक सर एक बात बोलूं, ये औरंगाबाद का बच्चा है ना, ये जरूर विकासा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कभी ना कभी, क्योंकि औरंगाबाद का जो विकासा है ना, उनके स्टूडेंट्स काफी एक्टिव है सर। ओके। मतलब उनको देखा है मैंने कि काफी चीजें तो वो खुद से सब कुछ तैयार करते हैं, विकासा चेयरमैन के पास जाते हैं कि सर हमको ये करना है। ओके। सो क्योंकि मेरे वो जो चेयरमैन है वो काफी अच्छे फ्रेंड है, वो मुझसे शेयर करते हैं हर बात। और मैं ये चाहता हूँ सर कि हमारे नासिक विकासा के भी बच्चे बहुत एक्टिवली सामने आए, सजेशंस दे, इन्वॉल्व हो और हमको हेल्प करे। हम तो क्या सर चाहते ही है कुछ ना कुछ करना। आप जो बोलोगे हमको करना ही है। बस 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 हमको करना ही है। मैं तो नासिक के बच्चों को फिर से अपील करूंगा कि आप आओ, इन्वॉल्व हो जाओ नासिक की एक्टिविटीज में। हमने कल परसों ही ग्रुप से मैसेज भी डाला था कि जिसको भी इंटरेस्ट है, कुछ भी काम करना है, सोशल मीडिया पे है, न्यूज़लेटर पे है, सेमिनार्स में प्रेजेंट करना है, कुछ भी हो वो जरूर करे। अभी देखा होगा आपने कि औरंगाबाद के बच्चों का जो टॉक होता है, देखो सर काफी पॉलिश्ड टॉक है, क्योंकि ये बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जब कुछ करना होता है ना कुछ, तो आदमी प्रैक्टिस करता है, बात करता है, तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। सो दिस इज हाउ विकासा हेल्प्स यू इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आल्सो। सो आई विल रिक्वेस्ट अगेन टू ऑल नासिक स्टूडेंट्स टू जॉइन विकासा एक्टिवली। और अभी नेक्स्ट सर लेंगे हम, कौन है? आकाश का वीडियो ऑन दिख रहा है मुझे। दैवद्यन एक मखदूम करके एक है, उनको ले ले। हाँ सर चलेगा चलेगा। देवा, उसके बाद आकाश को लेते हैं। दैवद्यन मखदूम, अनम्यूट कीजिए खुद को। एंड रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के जितने भी आप विकासास है, आप उस पे जाना। टू ऑल द गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दैवद्यन। यस बोलिए दैवद्यन सर, तुम्ही जीएसटीचं लेक्चर सेमिनार हे केल्याबद्दल आभारी आहे। आणि एकदम तो आप कैमरा बंद कर दीजिए दैवद्यन, तो शायद आपका आम्हाला हाँ तुमचा आवाज येत नाही है, कॅमेरा बंद करा, आवाज येईल व्यवस्थित। हॅलो। हाँ बोला। हाँ सर, हॅलो। हॅलो सर, हॅलो। बोला बोल दैवद्यन। हाँ सर, जीएसटी सेमिनार आयोजित केल्याबद्दल आभारी आहे। आणि परत इन्कम टॅक्सचा सेमिनार तुमच्याकडून ऐकायला आवडेल पहिलं सर। थँक्यू थँक्यू। नक्कीच करू दैवद्यन, आम्ही प्रयत्न करतोच आहोत, आम्ही अरेंज करूच नक्कीच। सो सुरुवातीला मी लेक्चर अटेंड करताना वाटलेलं एक 10-15 मिनिटात नेटवर्क इश्यू आहे। हाँ नेटवर्कचा इश्यू आहे, काय हरकत नाही दैवद्यन, तुमच्या भावना पोहोचल्यात आमच्यापर्यंत, आम्ही नक्कीच काम करू। आकाश जी बोलिए। हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? एकदम। हेलो। यस यस। हाँ सर, मैं आकाश बुत्तड़ा हूँ, मैं लातूर से बात कर रहा हूँ सर। सबसे पहले तो मैं नासिक विकासा का थैंक यू करना चाहूंगा सर। पहले कैसे होता था, विकासा में प्रोग्राम्स बहुत होते थे। एक्चुअली मैं औरंगाबाद में आर्टिकलशिप की है, लेकिन सर बहुत बार रीच नहीं कर सकते थे हम वहाँ पे। लेकिन जब से अब लॉकडाउन हुआ है, जब से आप ऑनलाइन अरेंज कर रहे हैं सब प्रोग्राम्स, तो सबको रीचेबल है सर। मतलब बहुत से ऐसे आपके प्रोग्राम बहुत और अच्छे भी हो रहे हैं। और फलक सर का भी बहुत थैंक यू करना चाहूंगा सर। एक्चुअली कैसा हुआ, जीएसटी पहले मैंने जब आर्टिकलशिप की तब जीएसटी नया नया था और वैट था हमारे ऑफिस में। तो वैट का रिटर्न भरा और जीएसटी की प्रैक्टिस ही नहीं थी, सर ने बंद कर दी थी उसके बाद। तो जीएसटी पढ़ने को ही मिला नहीं, और मैंने आईपीसीसी किया था तब भी वैट था, जीएसटी था ही नहीं। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई। मुझे जीएसटी सीखने की बहुत इच्छा थी, मैंने खुद से सीखने की कोशिश की, लेकिन सब टुकड़ों टुकड़ों में सीखता था हर बार। तो वो सब अरेंज करना, एक जगह करना, वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब जब आपका सेशन किया, हर एक छोटी 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 चीजें पूरे एक जगह कंबाइनली होके पूरा स्टार्ट से एंड तक पूरा सीखने को मिला। इसलिए सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सब समझा, सब सीखने को मिला, छोटी से बेसिक से लेके एंड तक सब सीखने को मिला।
सर बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत एंजॉय भी किया। मैंने फर्स्ट डे से पूरा सेशन बिना रुके देखा, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड। थैंक यू आकाश, वेरी गुड। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको और आपके प्रिंसिपल को इसमें हेल्प होनी चाहिए, ऐसा ही मेरा विशेष है। सर अभी नेक्स्ट किनका लें? स्नेहल कांबले। उनका वीडियो, हाँ वीडियो, हाँ ओके ओके स्नेहल, तो कैमरा ऑन करेगा उसको ही बोलने का मौका मिलेगा। बोलिए हॅलो सर, मी बोलिए। लातूरवरून आहे. मी बीवॉक फर्स्ट इयर स्टुडंट आहे, अकाउंट टॅक्सेशन. तर थँक्यू सर, फलक सर, खूप छान तुम्ही शिकवलं. आणि मी म्हणजे या क्लासच्या अगोदर रजिस्ट्रेशन केलं होतं, तर ते चुकलं माझ्याकडून, रॉंग झालं. तर तुम्ही शिकवलं ना ते म्हणजे डोक्यात बसले. आता इथून आम्ही बरोबर करू. थँक्यू. आमचे सगळे म्हणजे माझे जे क्लासमेट आहेत ना, ते आम्ही सगळे म्हणजे जॉईन करतोय तुमचा क्लास कळाल्यापासून. तर इन्कम टॅक्सचं सुद्धा घ्या सर, आम्ही करू तुम्हाला, आम्ही पाहू ते. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू स्नेहल, थैंक यू स्नेहल। हाँ, I think एक वृषाली करके है, उनका भी हमेशा, शायद अभी तक उनका रिव्यू नहीं आया ना हमको। नहीं है। हाँ हाँ, उनका लेना है, ओके। खुशहाली वाडे, हाँ बोलिए जी। हेलो सर, हेलो वृषाली, आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम नासिक सर। ओके ओके इंस्टीट्यूट स्टूडेंट एज वेल। ओके, वेरी गुड, फाउंडेशन और इंटर मैंने इंस्टीट्यूट से ही किया था। वेरी गुड। So I am well aware about institute and like about Falak sir. जब हम इंटर like from 2019 I am in इंटर, तो जब भी जीएसटी पढ़ते थे तो हमेशा लगता था कि थियोरी पढ़ रहे हैं, सिर्फ थियोरी पढ़ रहे हैं, लाइक एग्जाम्पशंस कभी समझ में नहीं आते थे एंड लाइक बाकी सब भी सिर्फ थियोरी लगता था। एंड लाइक फर्स्ट ग्रुप तो मेरा हो गया है क्लियर अभी, बट फिर भी वो हमेशा लगता था कि जीएसटी सिर्फ थियोरी है एंड प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करे समझ में नहीं आता था। बट अभी ये सेशन के बाद आई एम लाइक कि हाँ, जब भी मैं अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन करूंगी तब आई विल बी लाइक बेटर एट जीएसटी, लाइक आई विल बी वर्किंग बेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्चुअली मैं आपसे शायद कभी एक बार शेयर भी किया है मैंने बातों में, जीएसटी का ये पर्टिकुलर वर्कशॉप लेने का आइडिया ही यही था कि सिर्फ प्रैक्टिकल लेना है, थियरी इसमें पढ़ाना ही नहीं है। मतलब फलक सर से हमारा जो डिस्कशन होता था, बार बार 4-5 दिन हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर अरेंजिंग द सेमिनार, तो यही बात होती थी कि सर जितना प्रैक्टिकल के लिए जरूरी है उतना ही थियरी पढ़ाइए, बाकी थियरी तो बच्चे क्लासेस में पढ़ लेते हैं। क्लासेस में तो उनको वही सिखाने को मिलता है, बुक्स में है, सब कुछ है, इनको प्रैक्टिकल हमको देना है कुछ ना कुछ, सो दैट कि वो एंजॉय करे, पढ़ते वक्त भी उनको मजा आए कि हाँ ये पढ़ रहे हैं हम, जो हमने फलक सर के क्लास में या फिर प्रैक्टिकल में कहीं ना कहीं देखा था ऑफिस में। मैं मेरे पास जो आर्टिकल्स करते हैं बच्चे, उनको भी यही बोलता हूँ कि आप ऑफिस में जब काम कर रहे हो, कोई भी क्लाइंट का काम हो, उसमें जो भी प्रोविजन आपको अप्लाई करना है उसको एक बार जरूर पढ़ो। आप जब काम करना है तब पढ़ोगे ना अगर, तो आपको एग्जाम के वक्त तो प्रोविजन याद आ जाएगा कि हमने इस XYZ क्लाइंट के लिए ये प्रोविजन का यूज किया था, जो अभी यहाँ पे अपने को यूज होता है। मैंने मेरे खुद आर्टिकलशिप में एक्सपीरियंस किया था, इसलिए मैं बोलता हूँ सबको कि आप ये करो जरूर। सिर्फ आर्टिकलशिप में जाना है, कंपलसरी किया है, इसलिए मत जाओ। इसके लिए प्रैक्टिकल थियरी को ऐसा ही सेट किया कि प्रैक्टिकल के लिए काम वाला थियरी, बस बाकी कोई थियरी नहीं सीखा। मतलब हमने जो पढ़ा है अभी तक थियरी इंटर में, तो वो सब अभी लाइक लेक्चर में आई कुड लिंक द थिंग्स, यू नो। करेक्ट, ठीक है, थैंक यू वृषाली, थैंक यू सर। एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू जॉइन आवर विकासा, because you are from Nashik. I'll again request you to join Vikasa in active participation, like anything you can do for Vikasa. हम लोग आपका जरूर वेट करेंगे। हाँ, मैंने रजिस्टर कर दिया है, लाइक कल जो मैसेज आया था तो उसमें मैंने रजिस्टर कर दिया है। वेरी गुड, थैंक यू। वेटिंग फॉर द रिप्लाई नाउ। ओके ओके, राहुल विल डेफिनेटली कोऑर्डिनेट विद यू। राहुल देखता है वो सब कुछ। थैंक यू। अभी नेहा काले करके है, ले ले उनको। जी जी हाँ, लीजिए ना सर। नेहा काले जी, कैमरा ऑन करोगे तो ही बात करने मिलेगा, वरना चांस गया। नेहा काले जी सुन सकते हो वॉइस? सर उनके बाजू में शिरीन करके है। शिरीन करके है। हाँ, एक मिनट शिरीन जी, सॉरी, इनका वॉइस आया नेहा जी। ओके ओके, यस नेहा जी बोलिए,
वॉइस आया? हेलो सर. हाँ, हाँ सर, एम आई ऑडिबल? यस यस, टेल मी। हाँ यस सर, मेरे यहाँ नेटवर्क कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती. चलेगा चलेगा, बोलिए। हाँ सर, तो मैं डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट हूँ. अभी अभी मेरा आर्टिकलशिप चालू हुआ है. ओके। तो सिलेबस में तो थेरोटिकली सब मिलता है, पर मैं जहाँ आर्टिकलशिप कर रही हूँ ना, वो सर ही इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, तो हमारे यहाँ जीएसटी का कुछ काम नहीं होता, तो प्रैक्टिकली वो कुछ समझ नहीं आता ना फिर. तो आपने इतना अच्छा समझाया है कि मैंने 10 डेज अपना अटेंड किया है फुल. और तो मेरे पापा है अकाउंटेंट, तो वो कहते थे मुझे GSTR1 मैंने आज फाइल किया, GSTR3 भी फाइल किया, तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या किया. तो अब मैं समझूंगी आई थिंक. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू नेहा, थैंक यू. आप कहाँ से हो नेहा? सर आई एम फ्रॉम सांगली. ओके ओके, थैंक्स अ लॉट. सर अभी आदित्य जी को लेते हैं, फिर सर शिरीन वो को लेते हैं. उनको ले लेते हैं, शिरीन जी हाँ. को ले लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके. यस शिरीन जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए आप शिरीन जी. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा शिरीन जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपकी पहले। आवाज नहीं आ रही है शिरीन जी, आपको अनम्यूट करना होगा. आप हाँ हेलो, ओके, बोलिए। गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट हुआ है. मैं शिरीन हूँ, 2017 में कंप्लीट हुआ है. बट प्रॉब्लम यही हुई थी कि मैरिज, किड्स और इस सब चीजों में मैं जीएसटी पर ध्यान नहीं दे पाई थी. हाँ, पर था कि जीएसटी सीखना है. डर लगता था कि सिलेबस इतना वास्ट है उसका कि कहाँ से शुरू करूँ. तो थैंक यू फलक जी, आपने एक वे दिखाया कि किस तरह हमें जीएसटी स्टडी करना है इन प्रैक्टिकल वे में. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं सतारे से हूँ, पुणे से कुछ 2 घंटे के अंतर है, इस डिस्टेंस पर है. Okay, sir. Satara is also one of the participating branch. करेक्ट। या Okay. थैंक यू सो मच. Thank you. अभी आदित्य जी का. आदित्य जी, यस आदित्य जी बोलिए। हेलो सर, yes, मैं सांगली से हूँ एक्चुअली. परसों मैंने हैंड रेज किया था, वो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हुआ नहीं वीडियो ऑन. तो एक्चुअली थैंक यू सर, आपने जो सिखाया है. अभी जो नेहा जी बोली, तो मैं उनके साथ ही आर्टिकलशिप में हूँ. तो मेरा भी वही प्रॉब्लम था कि मतलब इनकम टैक्स तो सीख रहे थे, लेकिन जीएसटी वगैरह उतना सीख नहीं पाते थे. बट एक्चुअली जब मैंने इंटर का एक्चुअली ग्रुप 1 दिया है ना, तो जीएसटी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था और मतलब उसका स्टडी भी ज़्यादा हुआ था, लेकिन वो प्रैक्टिकल जो चाहिए ना, वो एक्सपीरियंस था नहीं. तो एक्चुअली इस मतलब क्लास की वजह से मिला. और जो आपने वो मतलब वेबसाइट से डायरेक्ट जो पढ़ने की अभी आदत लगाई है ना, तो सांगली विकास में मैं अभी आर्टिकल एक लिख रहा था इनकम टैक्स पे. तो उस वक्त भी मैंने मतलब गूगल पे सर्च करने के बजाय इनकम टैक्स में गया, मतलब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, वहां पे जाके ढूंढकर वो आर्टिकल अभी लिखा है. और उसका फायदा एक होता है कि जब गूगल पर हम जाते हैं तो मतलब सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है, तो वहां तक लिमिटेड रहता है. अब जब मैं इनकम टैक्स में गया था, तो मतलब वहीं पे जो सेक्शंस के लिंक भी वहां पे थे, तो उसी लिंक पे क्लिक करके मतलब मैं लिख रहा था एक सेक्शन पे, लेकिन जाते जाते मैंने 4-5 सेक्शंस पढ़ लिए. ये भी एक्चुअली फायदा हुआ उससे. Sir, it is like Facebook ना, Facebook पे हम जाते हैं देखने के लिए कुछ और. यस सर, यस. So आपके साथ भी वैसा होने लगा है अब. आप बोलते ही वो इंस्टाग्राम है गवर्नमेंट का. हाँ ऐसा बोलना पड़ता है तो ही जाते हैं बच्चे. वेरी गुड वेरी गुड. सर अभी अंकुश एक है. अंकुश को ले लेते हैं. यस अंकुश जी बोलिए. हेलो सर. यस अंकुश, कहाँ से आप? आई एम अंकुश मेहर फ्रॉम अहमदनगर. ओके. मैं सभी विकास जो ब्रांचेस जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया है, और फलक सर, सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ. थैंक यू सर. आपने जो सिखाया, वो आपने थ्योरी के साथ लॉजिक मतलब समझाया, वो बहुत मतलब फ्रूटफुल है हमारे लिए आगे जाके. और नगर में कैसे, जहाँ पे मैं आर्टिकलशिप करता था, वहाँ पे जो प्रैक्टिस थी वो हमें सिर्फ R1 और 3B और रिकंसिलेशन करने मिलता था. ये ऑडिट मतलब 9C वगैरह हमारे हाथ में आते ही नहीं था. और दूसरा मतलब रिफंड मतलब हमारे क्लाइंट ऐसे नहीं थे कि तो रिफंड कर सकते हैं, उसका भी हमें नॉलेज मिला, जो आगे जाके अगर एक्सपांड किया हमने खुद का प्रैक्टिस वगैरह तो हमें यूजफुल होगा.
और इसके साथ सर आपने जो आपके एक्सपीरियंस शेयर किए वो भी हमें बहुत आगे जाके काम में आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अंकुश। और कैसे था सर, लॉकडाउन में वैसे भी पेपर पोस्टपोन्ड हुए थे, इसके वजह से तो स्टडी तो हो नहीं रहा था, और वो नोटिफिकेशन मतलब मैसेज आया व्हाट्सएप पे ब्रांच से, और जीएसटी पे था, मतलब इम्पोर्टेंट था, तो बोले अभी वैसे भी टाइम है अपने पास, जो काम का चीज है वो सीखने मिलेगा। तो वो अरे। बहुत मतलब रियली हमें बहुत अच्छा लगा कि ये इतना विकासा भी इतना अच्छा करा इस बार लॉकडाउन में, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। थैंक यू अंकुश। थैंक यू अंकुश फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग विकासा। अभी एक और चीज सर, अंकुश ने एक पॉइंट उठाया था इसलिए मैं थोड़ा बीच में बोल रहा हूँ। जनरली बच्चों का ऐसा कहना रहता है कि हमको ये काम करने नहीं मिल रहा है, वो काम करने नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह सब कुछ। सर मेरे ऑफिस में भी मैं बच्चों को ये पहले दिन समझाता हूँ अच्छे से, कई बार 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 समझाना पड़ता है। उनको ऐसा लगता है सर कि कई बार मतलब हो जाता है बच्चों से भी कि मैं पहले मंथ में उनको लगता है कि मेरे को ऑडिट देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। जनरली आप जो काम कर रहे हो लाइव काम कर रहे हो, लाइव ऑन द डेटा ऑफ क्लाइंट। वो क्लाइंट जो है अपने पास मतलब किसी भी सीए के पास जब आता है तो वो एक भरोसा रख के आता है कि मेरा काम एक्सपर्ट्स के हाथों में है। अब समझो आप डॉक्टर ही पढ़ रहे हो, तो क्या आपको पहले दिन वो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने देगा? नहीं करने देगा ना, वो पेशेंट भाग जाएगा ऑपरेशन टेबल पे से। अगर वो देखेगा कि सब नए नौसिखिए डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं मेरा, तो भाग जाएगा। मतलब देखो वो तो डॉक्टरी पास करने के बाद भी तुरंत ऑपरेशन नहीं करने देते डॉक्टर्स को। आप तो अभी तक सीए के सिर्फ एंट्री में हो, तो आप भी अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा ग्राउंड लेवल पे लाओ। और डेफिनेटली मैं ये बोलता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है सर, मेरा खुद के मेरे ऑफिस में है, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपको सारा एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन आप काम करने का ओनरशिप लो। प्रॉपर बोलोगे कि मेरे को करना कुछ नहीं, सीखना सब कुछ है, तो वो कभी नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। कोई रिलेशन टेक होता है। गिव एंड टेक होगा तो ही टिकेगा रिलेशनशिप। पलक सर ने एक बार बोला था बीच में कि प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। तो ये वाला भी एक समझ में आता ये है। भी एक प्यार है। आज ऑफिस में काम करना भी एक प्यार है। आज मैं प्रैक्टिस के पहले जब मैं एम्प्लॉयमेंट में था, एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी थी, मैंने जब छोड़ा, मेरा बॉस मेरे सामने रोया, पूरे 100 स्टाफ के सामने वो रोए कि तू चला गया, मतलब मेरा एक पार्ट, बॉडी का पार्ट चला गया। ये उनका कमेंट था। सो एक ऐसा प्यार करोगे तो सामने वाले को सिखाने में भी आपको मजा आएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड, मस्त मस्त। और यही सब सबसे अपना बड़ा अचीवमेंट रहता है सर, बाकी सब तो चीजें छोटी हो जाती है इसके सामने। काम तो सब करने वाले हैं, बट याद रहना चाहिए कि हाँ भाई इसके साथ काम करने में आज भी उनको कुछ भी जीएसटी का डाउट होता है, वो मेरे से सीनियर है, मतलब प्रैक्टिस तो मतलब उनका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 30 इयर्स के ऊपर है आज, बट फिर भी कुछ भी डाउट होता है जीएसटी का वो मुझे ही कॉल करते हैं अभी भी। वेरी गुड, दैट इज द गुड अचीवमेंट सर। यही है, हम लोग भी बच्चों को बोलते हैं पहले ये दिन। बच्चों को ध्यान रखना है कि यू हैव टू स्लॉग, आपको स्लॉग करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा आपके बॉस को कि हाँ हम इंटरेस्ट है सीखने के लिए। काम तो सब करेंगे, बॉस भी तो काम कर रहा है, काम तो सब करेंगे। आपको दिखाना है कि आपको लर्न करना है। आप उसका भरोसा जीतोगे ना, तो वो डेफिनेटली आपको और ज्यादा काम देगा और करेगा, और वो बोलेगा कि करो। आप बहुत कम लोग हैं सर जो अभी आजकल एक्सप्लॉइट करते हैं, अदरवाइज सब लोग बोलते हैं कि आप सीखो, करो, अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, बस ये रहता अभी है। पूरा वो चेंज हो गया, अभी पूरा प्रैक्टिस का स्टाइल पूरा चेंज हो गया है। सब नए सीएज आए हैं, एनर्जेटिक सीएज आए हैं, पूरा एक डिकेड चला गया है। सो अभी सब कुछ जो पहला नहीं है, जो पीयूष सर ने जो सहन किया होगा या जो बाकी सब ने, वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत रेयर है अभी। नहीं, हम तो लकी थे सर, हमारे भी बॉस ऐसे ही थे जैसा हम बच्चों के साथ में डील करते हैं। मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं सर। और हम लोगों ने 15 साल में हमारे साथ में जितने भी लोग काम करके गए हैं, हम सबको बोलते हैं कि अगर आप अपना टेन्योर अच्छे से करोगे ना, तो हम एक रिस्पेक्ट से उनको विदा करते हैं सर। एक पार्टी रखते हैं, पार्टी में उनको पूरा रिस्पेक्टफुल विदा करते हैं, सारे फोटोग्राफ शेयर होते हैं हमारे ग्रुप्स पे। सो दैट इज द थिंग। उस दिन फिर उसके बाद में सब कुछ बोलते हैं लोग कि इसका एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा था वगैरह। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ये प्रोग्राम का एंड कर रहे हैं ना, दैट इज आवर वर्किंग स्टाइल। सो उसमें सर बच्चे फिर जाते हुए बोलते हैं
कि क्या क्या सीखा, कितनी बार डांट पड़ी तो हाँ। पहले कैसा लगा था, क्या बाद में सीखा कैसा समझा. सो दिस इज हाउ वी बिल्ड अप आवर रिलेशंस. अपना कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सब कुछ चीजें सर, डेफिनेटली. सो थैंक यू अंकुश फॉर रेजिंग द पॉइंट. उसकी वजह से याद आया मुझे कि ऐसा हाँ। सबके साथ में शेयर करना चाहिए. सर नेक्स्ट. नेक्स्ट पायल जी को ले. हाँ पायल दराक. क्या नेटवर्क सबका अभी खराब हुआ? सबके कैमरा वीडियो ऑफ है. कहाँ गए? तो चले गए. ओके चलो. श्रीराम जी, आई थिंक ये भी एक एल्डर टू अस है, एल्डर टू मी है. आई होप दिख तो ऐसे ही रहे. सॉरी अगर आपका एल्डर बोल रहा हूँ. यस सर. हेलो सर. Good evening, sir. How are you? ऑल गुड सर. आप बताइए. Yeah. Thank you very much for this session. See, I could remember my younger days in KG, where teacher used to hold your hand and write. Correct. It is not the question of writing; it is the art of writing. Art of writing. It is a knack. What is that I have learned? All along, I have been little scary about GST, but it gives some confidence at least to see where to look at what. That Correct. confidence I have got, and I should thank you. Thank you, And sir. of course, unfortunately, 2 days I could not attend, but that's okay. I can make up. And Okay. also, I have a small suggestion. It may look like out of context. Maybe for the CA students or whatever it is, we can also just give an introduction of project management, so that may be useful, because generally what happens is, I have seen in the industry, finance people, they are always seen as disoriented with the operations. So this is a suggestion. Anyway, it is up to you whether it makes sense. Correct. Anyway, I thank you very much, and I will remember you always for GST, because you are my guru. Array, thank you, sir. Thank So you, sir. where are you located? I am in Bangalore. Sorry, I didn't tell that. I am in Bangalore. Great. Thank you. Okay. So Thank thanks you, a sir. lot for the input. Definitely, we will try to get something like what you said. I have experienced this because I have worked with many corporates as an auditor or something like that in a professional manner only. And I have seen what you said is that always the operations people think that finance people are not oriented towards the operations and like that. And even finance people had some apprehension that operations people don't understand finance and they don't give any weightage to finance. So this is how the culture goes, and it depends on culture of the management and the organization as well. So, but definitely, sir, from our side, in the CA students, will definitely try to inculcate this kind of approach, which will be helpful for the organization in future. Thanks a lot. Yeah, exactly, sir. Because even my experience is, though mine is more to relate with finance, but I am more oriented to technology. So that is Okay. how I found that there was a gap. Anyway, Correct. thank you very much. Thanks for all Thank the you, sir. support. Thank you, Ben. दीपक लदानी सर लेवे. दीपक जी सर, लीजिए ना. यस सर, बोलिए. आप अनम्यूट कीजिए पहले खुद को, दीपक जी. Good evening, sir. बोलिए. Sir, first of all, I want to thank Piyush sir and Falak sir for taking these excellent classes. Or sir, I like these classes because, sir, I have cleared CA Inter of the November 2020 attempt. But sir, GST क्या theoretical पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकल लिंकेज जब आपने पढ़ा है तब हम लिंक कर पा रहे थे कि कैसे वो लिंक करना है, कैसे रिटर्न फाइल होती है, जो भी पढ़ा है. और सर एक बात ये भी है कि सर जब भी मैं कोई एक्ट पढ़ता था तो उसकी डेफिनेशन स्किप कर देता था कि बाद में पढ़ेंगे. तो सर आपने बताया कि प्रोसीजर पहले डेफिनेशन पढ़ो, पहले समझो उनको, फिर एक्ट पढ़ो. तो सर वो भी मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ. वेरी गुड. दीपक, आप कहाँ से हैं? जयपुर. जयपुर से. ओके, गुड. ओके सर, अभी नेक्स्ट स्वप्निल जी को ले लें. निकिता करके मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक. हाँ, ले लीजिए. वो क्या स्टेप Sir, am I audible? Yes, tell me. Yes, you are audible. Sir, I am from Gorakhpur, Uttar Pradesh. It is near Lucknow. Okay. Sir, I would like to thank Falak sir and Vikasa because sir, it helped me a lot. Sir, on past 28th of April, my father expired, and because of which he was an income tax advocate, and I had to take his clients, GST clients. And just I am an article assistant. I have been practicing for 6 months, but I was not that much confident in taking and doing the work. But due to Falak sir, thank you so much, sir. I am able to handle the clients now, and also whatever queries they are asking, and I am able to just manage and search and tell them, and I'm very much satisfied and very much thankful to you. Thank you so much for that.
Thank you, Nitika ji. I hope everything will be fine. Time shall heal everything. Our best wishes, madam. Thank you, sir. Thank you. Yes, Swapnil ji, बोलिए. सर नमस्कार, मैं स्वप्निल सुपारे औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली फलक सर ने ये बताया है कि क्रिकेट पढ़ने से नहीं खेला जा सकता, उसे फील भी करना चाहिए, वो भी गोवा के बीच में जाके क्रिकेट खेलना है। बीच में जाएंगे गोवा के और आप खेलेंगे तो आपको क्रिकेट का जो मजा आता है, जैसे हम लॉ पढ़ने में मजा नहीं आता है, खेलने के बाद बहुत सारे बच्चों को समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्रिकेट ऐसा खेला जाता है और इंटरेस्ट बनता है, वैसे इंटरेस्ट सर ने बनाया है। एक बात बोलना चाहूंगा सर, एक्चुअली विकासा और सभी स्टूडेंट्स का मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके बगैर और स्टूडेंट्स के बिहाफ में मैं थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स और आप नहीं होते तो आज मैं ये लेक्चर नहीं देख पाता था। तो सर एक्चुअली ये मुझे भी पता नहीं था, मेरे दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसे कुछ लेक्चर्स हो रहे थे तो कंटिन्यू कर, तो मुझे एग्जैक्टली आईसीए और विकासा के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था। मैं सबसे शुक्रिया कहना चाहूंगा हमारे स्वप्निल पाटनी सर और मेरे सीए जो दोस्त भी हैं और मेरे आर्टिकल जिनके पास सर। एक्चुअली सर मैं बैट में प्रैक्टिस कर रहा था, हेलो, हाँ बोलिए वॉइस आ रहा है। और सर उसके बाद मैंने मेरा एमबीए कंप्लीट किया, तो बाद में मैं होने के बाद मेरे साथ ऐसे कुछ कोइंसिडेंस हो गए कि प्राइवेट होना पड़ा सीए का कोर्स करने के लिए। तो मुझे सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किया हमारे सीए स्वप्निल पाटनी सर ने और मेरे दोस्त आरबी रंगरे सर ने कि आप अभी कर सकते हो एग्जैक्टली ग्रेजुएशन एमबीए और आपकी अदर्स जो डिग्री हो चुकी है ये मायने नहीं करती है, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा है और आप कैसे सीखते हो ये इम्पोर्टेंट होता है सर। तो एक लास्ट बोलना चाहूंगा सर, जैसे आपने इतना अच्छा हमें पढ़ाया है, तो इसके साथ साथ बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सेकंड ग्रुप जो है इंटर का, तो सर EIS के बारे में भी कुछ आपके जैसे फैकल्टीज होंगी जो प्रैक्टिकल कुछ बता सके, क्योंकि वो पढ़ने में मजा नहीं आता है सर। एक फैक्ट बोलो तो ऐसा बोलते हैं बहुत सारे दोस्त, अभी किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है, लेकिन एक एडवाइस था या फिर एक सजेशन की कुछ EIS के बारे में सर देखिए, और इनकम टैक्स का जो DT का कोर्स है वो डेफिनेटली सर 7 जून को लॉन्च कीजिए। ठीक है पक्का। स्वप्निल सर, मैंने ना एक के बाद एक तुरंत सबको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट डाला था, अभी अंकिता है रेडी है, ओके टाइम बचेगा अपना। ठीक है चलेगा, हाँ चलेगा। हेलो, यस अंकिता जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं औरंगाबाद से बात कर रही हूँ सर। पलक सर, आपके GST से तो लेक्चर से थ्योरी तो क्लियर हुआ है और भी क्लियर हुआ, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मतलब ऑफिस में काम चलता था, प्रैक्टिकल वर्क भी दिया था, हैंड ओवर किया था मेरे को, तो वो अभी फिर से प्रैक्टिकल भी क्लियर हो रहा है आपके लेक्चर के वजह से। और आपके टैक्स के लेक्चर के लिए आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं सर। थैंक यू। और मेरा ऑफिस मुंबई में है, तो विलेपार्ले में मिलेंगे। यस सर, हम भी मुंबई का ही है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। पवन सर कल भी ट्राई कर रहा था, पवन को हम कल टाइम नहीं दे पाए थे। ओके यस पवन जी बोलिए। पवन आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे। हेलो सर, मैं आगरा से हूँ। सबसे पहले फलक सर को बहुत बड़ा थैंक यू, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं, उन्होंने समझाया 10 दिनों में, हमारा फ्रेंड जैसा रिलेशन हो गया, टीचर और स्टूडेंट जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। एक्चुअली मेरा ग्रुप 1 हो गया है इंटर का, बट टैक्स में केवल थ्योरी हुआ था और डाउट्स रह जाते हैं हमेशा, तो वो सब अब क्लियर हुए और अब हमें पता चला कि अब लॉ को कैसे पढ़ना है। सेकेंडली मैं पीयूष सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा। सर ने 3 दिन का एक्सेल का कोर्स भी करा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब से मैं नासिक से जुड़ चुका हूँ, एक तरीके से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे हूँ, तो और जैसे कि सर ने कहा था कि आप हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आपको कोई सा भी चाहिए सेमिनार वर्कशॉप,
तो इवन मैं इनकम टैक्स के लिए भी बिल कल कर रहा हूँ, और मैंने कल सर को रिक्वेस्ट करा था कि एमसीए पोर्टल के लिए भी, मतलब कंपनी लॉ के लिए वर्कशॉप के लिए, तो सर ने कल बताया कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पवन। थैंक यू पवन। एक्चुअली पवन ने पूछा था सर कल मुझे व्हाट्सएप पे, तो हमने एक रफली 1 महीना पहले ही एमसीए पे भी ऐसा ही एक वर्कशॉप लिया था। उस पे भी सर ऐसे ही करवाया था कि एमसीए की वेबसाइट पे जाके कंपनी का फॉर्मेशन कैसे कैसा करना है, करेक्ट, वो पूरा वर्कशॉप यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट अभी पायल मैडम। ओके, यस पायल मैडम बोलिए। Hello, sir. Am I audible? Yes, yes. Sir, I'm from Ichalkaranji branch of WIRC. मेरा आर्टिकलशिप खत्म हो गया था सर, बट मुझे जीएसटी का एक्सपोजर नहीं मिला था क्योंकि मेरे आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद जीएसटी आया था। तो जीएसटी का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। हाँ, फाइनल स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ग्रुप बाकी है, तो सिर्फ थ्योरी पता था। तो अच्छा लगा आपने लेक्चर लिया। और सर किसी ने शायद कल या परसों कहा था कि फ्री में इतना कोई नहीं देता, आपने दिया। सीरियसली सर, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा लगा। और ईगरली वेटिंग कि आपके आगे भी कोई लेक्चर रहे तो हम अटेंड करें। अच्छा लगा, इसीलिए मैंने मेरे और 2 फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करने बोला, क्योंकि नॉलेज तभी बढ़ता है जब हम शेयर करते हैं। तो इसीलिए मैंने और 2 जनों को ज्वाइन करवाया, बोला ज्वाइन करो सर, अच्छा पढ़ाते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, प्रैक्टिकल नॉलेज मिला। अब अगर मेरा सीए क्लियर हो जाता है, एक ही ग्रुप बाकी है, तो आई विल बी ज्वाइनिंग माय हस्बैंड्स प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में काफी हेल्प मिलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने दिया है उससे। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा, अभी कल्याणी मैडम है। बोलिए कल्याणी। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ सर, आपको पलक सर को थैंक यू, और जीएसटी सेमिनार बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और मेरी वो गूगल सर्च करने की आदत अब भी कम्प्लीटली गई, मतलब मैं बहुत सर्च करते हैं। और पीयूष सर को भी थैंक यू, उन्होंने कंडक्ट किया। कहाँ से बोल रहे हो आप? अहमदनगर ब्रांच। ओके, थैंक यू सर। अनुराधा जी भी वेट कर रही है, कब से अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन एकदम पेशेंटली वेट कर रहे हैं। बोलिए अनुराधा जी, बोलिए। सर, मैं सीए इंटर की स्टूडेंट हूँ, तो माइक सॉरी सर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कुछ भी नहीं था क्योंकि अभी आर्टिकलशिप नहीं चालू हुई, तो अभी थ्योरी भी आपके वजह से बहुत कुछ क्लियर हुई है। तो मैं 5 जुलाई से एग्जाम देने वाली हूँ और आपके वजह से कॉन्फिडेंट भी लग रही हूँ इस बार। थैंक यू सर। कहाँ से अनुराधा? इचलकरंजी से। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। अभी आशीष जी दिख रहे हैं मुझे। यस आशीष। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आशीष जी। सर, मैं सीकर से हूँ, राजस्थान। सर, अभी मैंने जनवरी 21 में सर अपना सेकेंड ग्रुप क्लियर किया था और मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी सर। पर सर मैंने ज्वाइन करते ही सर लॉकडाउन लग गया, तो सर मैं अभी तक ऑफिस गया ही नहीं प्रैक्टिकली, मतलब घर पे ही हूँ। और सर मेरा टाइम मतलब लगभग वेस्ट में जा रहा था, कोई प्रैक्टिकल मतलब एक्सपोजर मिला नहीं मेरे को। तो अभी सर आपका लेक्चर काफी काम आएंगे मेरे को आगे जब मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। तो थैंक यू सर बहुत। आप मतलब आप लेकिन अगर फ्यूचर में भी कोई मैं बोल रहा हूँ भूल मत जाना, को सिखाया है तो अभी बहुत टाइम निकल जाएगा जब भी आप ज्वाइन करोगे ऑफिस में। ना नहीं बोलेंगे सर। सर अगर ये सर अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दो यूट्यूब पे तो सर बहुत फायदे में रहूंगा सर। नहीं सर, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सर। सर वो फलक सर बोलते हैं ना, इसका मजा लाइव में ही है सिर्फ। हाँ, इसका मजा लाइव में ही है बोला सर। हाँ, इसके मजा लाइव में ही है। गोवा लाइव जाओगे तो मजा आएगा। सर पहले दिन ही मुझे बोला था फलक सर ने कि सर इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल मत रखना, इसका मजा सिर्फ लाइव में है। मैंने बोला ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, हम वैसा करेंगे। मैं फर्स्ट वीक ज्वाइन नहीं कर पाया था, मैं सेकंड वीक से ज्वाइन किया मैंने। तो आप मोबाइल नंबर ईमेल दूंगा तो आप मुझे पिंग कर देना, तो आपको बोल दूंगा क्या से क्या कहा क्या पढ़ना है। सर आपका मोबाइल ईमेल सर कैसे मिलेगा? दूंगा वो लास्ट में देंगे सर, आखिरी तक रुकना पड़ेगा।
सर का कंडीशन आखिरी तक रुकना पड़ेगा। एंड तक जो मेरे साथ रहेगा ठीक। उसको मिलेगा। करेक्ट। आई थिंक सर एक you, समीक्षा sir. करके। Yes, हाँ thank मैंने you. उनका का रिक्वेस्ट दिया था सर। हाँ Okay. ये समीक्षा जी बोलिए। Hello, sir. Hello. I'm Samiksha Joshi. I'm from Amravati branch. Okay. And sir, I gave my first group in November 2020 and I failed in tax by 6 marks. So like मेरा बाकी पूरा second group I cleared and I have 2 exemptions in first group. मैंने सिर्फ Great. tax की वजह से like 6 marks की वजह से सर वो रह गया मेरा। तो मेरा I'm doing my revision classes for tax and GST and all. And I did this course also. Now it's like a double revision. So I really hope that I clear my tax in this हो attempt. जाओगे। 6 marks के लिए फिटोगे तो हो जाओगे। And I'm yet to start my articleship, so it will be very helpful in my articleship also. Okay. So like I'm very thankful to both of you for doing this. And my father is also a chartered accountant, so he told me to do this. Like he recommended this. I was like hesitant, like why to do this at 10 days? मेरा पढ़ाई का चला जाएगा बिना मतलब का. But फिर भी मैंने किया, and I'm very glad that I did this. Okay, thank you. वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू समीक्षा जी, थैंक यू सर। Thank you. अभी आपने मतलब जो है बचे हुए ना वो पुराने लोग ही है सब, उनसे भी एक बार बात करेंगे सर। आई थिंक एक हाँ ठीक है चलेगा। हाँ, मैंने गौतमी मैडम को अभी किया है। हेलो सर, आवाज आ रही? यस आ रही। सर सब जन जीएसटी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मुझे हमेशा से आदत है कि एक अच्छी क्वालिटी भी लेना आपसे जो कुछ पढ़ा रहे। तो फलक सर और मेरे में एक कॉमन चीज है, मतलब जो कनेक्शन बनाना है। तो मेरा प्लान है तो सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्लान भी मेरा पॉलिटिक्स या सोशल सर्विस देना था। तो मेरे गांव में कोई प्रैक्टिसिंग सीए नहीं, सीए 2-3 है। मैं खुद जब सीए हुई हूँ जनवरी से, सो 1.5 मंथ मेरे फेलिसिटेशन चल रहे थे घर पे। कम से कम 100 लोग घर पे दिन से आ रहे थे। तो उसमें एमपी एमएलए सब कलेक्टर भी आके गए। पर मुझे था कि अपने गांव में एक सर्विस देनी है। एक साइन के लिए लोग यहाँ से अहमदनगर जाते हैं, फिर वो आना है। आज तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हुई, तो आज मैं जीएसटी की सर्विस देनी है मुझे गांव में। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ये भी कनेक्शन मेरे साथ जुड़ गया है कि बाबा एक सर्विस देनी है एकदम फ्रीली, एकदम मस्त। और आज मैं सीए हूँ, फिर भी आज मैं फाउंडेशन के बच्चों के रजिस्ट्रेशन में मेरे पास से करके दे रही हूँ। मतलब यहाँ से स्टार्ट है। सो मुझे वो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी सर। और वो तो मैं आपसे सीख गई हूँ। जीएसटी तो सीखा ही है, लेकिन ये जो क्वालिटी है वो मैं आपसे सीख गई हूँ, और इसके लिए आई सैल्यूट यू। थैंक यू गौतमी जी। वेरी नाइस ऑफ यू गौतमी, वेरी नाइस ऑफ यू। भक्ति सर, शी इज वन ऑफ द स्टूडेंट जो हमेशा सिंसियरली कैमरा ऑन करके आपके साथ में बैठी है पहले दिन से। मतलब पार्टी भी करती है तो कैमरा ऑन करके, चाय कॉफी गोवा सब पॉपकॉर्न भी एकदम। गुड इवनिंग सर। यस बोलिए। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया फलक सर, थैंक यू सो मच। और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे फादर जो है वो 2 months बैक आई लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ कोविड। सो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी पढ़ाई का कुछ भी माहौल नहीं था घर में। लेकिन जब से मतलब कोर्स ज्वाइन करने का चांस मिला तो मेरा पढ़ाई थोड़ा सा ट्रैक पे आ गया है आपके पढ़ाने की वजह से। तो मैं जब आप प्रैक्टिकल पढ़ा ही रहे थे तो मैंने सोचा जीएसटी का थ्योरी भी खत्म कर दूं। तो मैंने जीएसटी पढ़ना भी चालू कर दिया। इस मतलब आपकी वजह से मेरा पढ़ाई ट्रैक पे आ गया है, तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू। आपके ऐसे टाइम पे मैं आपके फेस पे स्माइल लाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। ये सर मैं उसी वजह से आपको और पीयूष सर को और विकास। आप अनम्यूट हो, आप म्यूट हो गए या तो निकल गए, किधर गए? नहीं वॉइस गए आप। हाँ राइट का कुछ इशू दिख रहा है, वो काफी ट्राई कर रहे थे। करेक्ट, ठीक है भक्ति जी, थैंक यू भक्ति जी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। साहिल शॉ सर, अभी वीडियो ऑन करना पड़ेगा आपको। लता मैडम भी है, उनको ले लीजिए। हाँ तो मैडम को ले लीजिए, उनका भी ध्यान नहीं है शायद। लता मैडम हाँ आइए। 5 मिनट, चलो 5 minutes here then we'll leave। हाँ हेलो सर।
बोलिए। एक्चुअली मेरे को एक क्वेरी थी अच्छा सर। आपको फोन करके पूछ लेना, अभी थोड़ा सा टाइम का ये है, so हाँ नंबर अच्छा शॉर्ट में अपने को रिकंसिलेशन करने के लिए जब अपने को क्लाइंट आता है तब से ही अपने को एक्सेल शीट बनाना स्टार्ट करना चाहिए हर मंथ के अप्रैल मार्च एवरी उसके हिसाब से रिकंसिलेशन करना चाहिए। करेक्ट। थैंक यू अब पीयूष सर आपसे भी एक रिक्वेस्ट थी। बोलिए ना मैडम। हाँ सर क्या हो गया पता है क्या, अभी जुलाई में हमारी एग्जाम डिक्लेयर हो गई है 5 जुलाई से। जी। तो रिक्वेस्ट थी जो आईटी का आप कोर्स लेने वाले हो वो आफ्टर एग्जाम ले सकते हो क्या प्लीज, क्योंकि सीरियसली स्टडी कुछ नहीं की अभी स्टार्ट की है स्टडी इसलिए और कुछ भी नहीं। नो प्रॉब्लम मैडम, नो प्रॉब्लम। और पलक सर जो है हाँ हेलो पलक सर। बोलिए बोलिए। सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया है कि मेरा एक्चुअली जीएसटी का काम कभी नहीं हुआ है। मैं आईटी इनकम टैक्स का ही काम करती हूँ, ऑडिट वगैरह सब करती हूँ, बट कभी जीएसटी का काम नहीं किया था, डर लगता था। और कभी कोई आता था ना तो ऐसे लगता था फिर जा बाबा तू कर किसी कलीग को बोल देते तू कर ले, मैं इनकम टैक्स कर लेती हूँ तेरा। बट अभी अच्छा लग रहा है कि हाँ अभी मैं कर पा रही हूँ, मैं करूंगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर अभी कौन बचा आप देखिएगा। मनन दालमिया आई थिंक नए हैं, आई थिंक उन्होंने शायद नहीं आया तो टाइम देते हैं। मनन दालमिया बस एक जन को लेंगे एंड देन एक सीए सारिका जी जो है सबकी इंस्पिरेशन है, लास्ट में शायद इंस्पिरेशन पे हम क्लोज करेंगे। यस सर, मनन। उसके बाद में सर अभी ये पूजा भी है जो हैंड्स अप नहीं किया लेकिन वो फिजिकली हैंड्स अप कर रही है सर। ओके हाँ ठीक है पूजा बोलिए। सर मैंने पहले भी आई थिंक 3rd डे पे अपना रिव्यू दिया Correct, था। correct. पर मैं आज मतलब कुछ शेयर करना चाहूँगी। आपने जो बोला था नोटिफिकेशन की फाइल बनाने के लिए, तो आज मैंने वो सेंट्रल टैक्स रेट की जो फाइल है वो फाइनली कंप्लीट कर ली है। और जैसे जैसे मैं वो बना रही थी तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन फ्यूचर एज वेल। एंड अभी मैं इंटीग्रेटेड टैक्स जो रेट की जो नोटिफिकेशन की फाइल है वो भी आज मैंने स्टार्ट कर दी है, तो मतलब वो मेरे लिए हेल्पफुल होगी। एंड ऑल्सो प्योर सर आई एम ईगरली वेटिंग फॉर डायरेक्ट टैक्स लेक्चर एज वेल, so I hope you will conduct that also, and thank you for this lecture. थैंक यू पूजा। लास्ट तारीख हाँ आप भी नासिक से, आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि Yes. आप ज्वाइन कीजिए विकासा की एक्टिविटीज में। Yes sir, definitely. सर अभी Thank you, लास्ट sir. ले लेते हैं सीए ठीक है सर, ठीक है। हाँ सारिका जी का। ठीक है इंस्पिरेशन आ जाएगा। ये सारिका जी अगर आप है तो वीडियो पे या तो वीडियो, ये सारिका जी हाँ आपको अनम्यूट करना है सारिका जी। यस बोलिए। गुड इवनिंग सर। पहले तो मैं पीयूष सर से बात करना चाहूंगी। सर अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि सर के वाइफ यानी मैम भी सीए है। यस हेलो करेक्ट हाँ बोलिए। हाँ, तो बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि मुझे जो बोलना है वो पीयूष सर और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये Correct. चीज का मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला जैसे ही सर ने बोला। एक फीमेल सीए वो हिसाब से मैं आज आपको एक कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर। जैसे अपने यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स थे बहुत लोगों बहुत फीमेल सीएज जिनका गैप काफी हो चुका है, जैसे कि कल नीलोफर जी ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया था। तो आप जो स्टाइल से पढ़ा रहे हो ना सर, तो वो टाइप के सेमिनार्स या वो एक्सपर्टीज जो है ऐसी फैकल्टीज हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छी है सर। यानी ना वो एक इनर स्ट्रेंथ दे पा रही है अंदर से कि नहीं अभी भी
स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 2012 का पासिंग है, काफी गैप हो चुका है। और फ्रैंकली स्पीकिंग सर, मेरा आर्टिकलशिप भी बहुत अच्छे से नहीं हुआ था। बेसिकली मैं लातूर से हूँ। मेरा एक जो फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे पापा फार्मर थे, तो मेरे घर में ये सारी चीजों का अवेयरनेस नहीं था सर, नहीं था, और इतना कुछ मालूम भी नहीं था। आर्टिकलशिप तो मेरी औरंगाबाद में हुई, बट कुछ इश्यूज की वजह से वो प्रॉपरली नहीं हो पाई। और मैंने अभी रिसेंटली ऑफिस ज्वाइन किया, तो डायरेक्टली मुझे GSTR 3B वगैरह बनाने के लिए दिया, यानी सॉफ्टवेयर है और अपना GST का पोर्टल है। तो वो इतना, हर एक दिन जब मैं ऑफिस से रिटर्न घर पे आ रही थी ना सर, ऐसे लग रहा था एंड नहीं, मैं कर नहीं सकती हूँ, और घर संभालना है, बच्चों को देखना है, और उससे अपना रैम चेंज करना है कि अभी 2 घंटे मुझे ऑफिस जाना है। तो बहुत ऐसे, मैं पिछले, जैसे आपका लेक्चर शुरू हुआ है ना सर, मैंने ऑफिस स्किप किया है ये लेक्चर के लिए। और जब से मैं ये लेक्चर कर रही थी 10 दिन से, कि अब लगता है कि मुझे एटलीस्ट मैंने प्ले ग्रुप नर्सरी किया है GST का। और अब मैं ऑफिस जा सकती हूँ, मैं वहां कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे आप दोनों को यही बोलना है कि हम जैसे फीमेल CAs, यानी पीयूष सर भी शायद ये चीजें जेन्युइनली पहचान पाएंगे कि मुझे क्या बोलना है। अलॉन्ग विथ फैमिली, अलॉन्ग विथ किड्स, अपने प्रोफेशन के लिए जो टाइम निकालना है, आई थिंक हर लेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो काफी हद तक डिफिकल्ट होता है। ये हम पॉइंट लेंगे कंसीडरेशन में। yes. जबकि किड्स छोटे होते हैं ना, तब तो ये चीज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो मुझे ये बोलना है कि ऐसी फैकल्टीज आप जरूर लाइए, और ऐसे जिन्होंने इतना जेन्युइनली अपना नॉलेज शेयर किया है और एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया है कि नहीं, थोड़ी मेहनत तो लेनी है। जैसे CA बनने के टाइम पढ़ाई की थी डेडिकेशन के साथ, तो अभी भी सेक्शन 2 पढ़ना ही है और आगे बढ़ना है। तो मैं पीयूष सर, आपको दोनों को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि फीमेल CAs जिनका गैप हो चुका है, ऐसे लेक्चर सुनने के बाद उनमें जो एक एनर्जी बन रही है, तो जरूर आप ऐसी फैकल्टीज को लाइए, ताकि हमारे प्रोफेशन में या प्रैक्टिस में हम लोगों का जो गैप हो चुका है, तो एक हुनर जनरेट हो रहा है कि नहीं, कर सकते हैं। और सर मेरे केस में तो ऐसा है कि मेरे हस्बैंड CA है, बट उन्होंने आफ्टर CA IRDA के सर्टिफाइड कोर्सेज किए हैं, तो वो इंश्योरेंस सर्वेयर बोल के फुल फ्लेज प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा है कि बीइंग CA लाइफ पार्टनर वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम ये पॉइंट देखेंगे। यस पीयूष जी, हम भी ये तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दे दिया है सर। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। सर आपने जैसे बोला ना कि मैम और आप साथ में काम कर रहे हो, फिर तो मुझे मेरा ये जो ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा था, इसके लिए तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि पीयूष सर बहुत नजदीक से ये सारी चीजें जानते रहेंगे जब मैम ने ऑफिस आना शुरू किया रहेगा। श्योर करेंगे। और सर सच में बता रही हूँ आपको, जैसे फलक सर, जब से मैंने आपका GST के सेशंस अटेंड किए हैं ना, तो आज लग रहा है कि क्लास क्यों खत्म हो रहा है। सच में सर, सच में। और अब ना कैसे ही टाइम मैनेज करके मुझे पढ़ना है और GST का काम अच्छे से करना है। थैंक यू। और ये जो स्पिरिट जनरेट हुआ है ना, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट सर। हम ये पॉइंट को कंसीडर करेंगे एंड हम ऐसा भी कोड डिजाइन करेंगे। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। और सर मतलब यही कहना था कि डेफिनेटली सारिका जी का रिव्यू सुनने के बाद में बाकी भी जितने फीमेल स्टूडेंट और अदर स्टूडेंट्स है, उन सबको भी एक इंस्पिरेशन जरूर मिला होगा कि लाइफ में सारी चीजें तो आती है, साथ में अपना, लेकिन जो अपने को करना है, पैशन है, प्रोफेशन है, साथ में करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यस, थैंक यू सर। अच्छा, एक लास्ट सब बताना है, जिसको भी वो वीकली अपडेट देखना है, यहाँ पे बैकग्राउंड मटेरियल पे नीचे दिख रहा है NACIN GST वीकली अपडेट। यहाँ पे जाके आपको वीकली के सब अपडेट्स मिल जाएंगे, वे एकदम शॉर्ट में, मतलब इजीली आपको मिल जाएंगे। तो जो लास्ट में रहा उसको बेनिफिट मुझे अभी याद आया, तो इसके लिए इसको फायदा, ये वीकली पहला GST बैकग्राउंड मटेरियल नीचे आके
जीएसटी बैकग्राउंड मटेरियल पे आपको NSCIN जीएसटी वीकली अपडेट मिलेगा। यहाँ पे आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके, चलो मैंने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जो 2 था वो मैंने ऑलरेडी मैसेज में डाल दिया है। जिसको फायदा ले वो है, लास्ट में जो बच्चे हैं उनको मिलेगा। करेक्ट। एंड भक्ति जी, टाइम शैल पास, डोंट वरी, ये सब टाइम भी चला जाएगा। सॉरी अभी मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं है, तो इसके लिए मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, बट कम्युनिकेशन नंबर्स एंड ईमेल दे दिए, कुछ भी कभी भी होगा, एनीवन एनी टाइम कैन कनेक्ट। यस पीयूष सर। यस सर, यस। सो अभी एक्चुअली सर 10 दिन में ऐसा हुआ है ना कि कुछ बच्चों के साथ में वर्चुअली सही, लेकिन एक कनेक्ट बना हुआ है। काफी बच्चे जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं ना, उन सबसे कनेक्ट लगता है। बात तो आप कर रहे थे लेकिन कनेक्ट हम भी हो रहे थे, ऐसी बात है वो। और डेफिनेटली अच्छा लगता है कि जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं, कुछ आदान प्रदान हो जाता है, कुछ अच्छा लगता है। डेफिनेटली द फीलिंग इज वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम अभी हम पार्ट हो रहे हैं कुछ दिनों के लिए, सो थोड़ी सी वो फीलिंग भी बैड है। डोंट वरी, मैं जल्दी आऊंगा आपको सबको मिलने के लिए, नया कोई ना कोई कोर्स डिजाइन करके। सो स्टे कनेक्टेड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। टिल देन आप पढ़ाई भी करते रहो, खुद को भी सेफ रखो, फैमिली के साथ भी सेफ रहो, और मैक्सिमम फॉलो करने की कोशिश करो जो भी अपने गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिए हैं सेफ्टी के, क्योंकि भीड़ भी हम लोग ही करते हैं। हम लोगों ने भीड़ नहीं करनी चाहिए। अपने साथ में जितने लोग रहते हैं उनको भी हमने बोलना चाहिए कि कम से कम भीड़ करिए, बाहर मत जाइए ज्यादा, जितना जरूरत उतना ही जाइए, एंड स्टे सेफ। और फलक सर, thank you very much for the cooperation you extended, and because of you our course is actually a fruitful course. मुझे भी अच्छा लग रहा है सर कि जब मैंने शुरुआत में सोचा था कि कैसे करूं, अपने अकेले ब्रांच में करने वाला था, लेकिन जब लगा आपसे बात करके मुझे कॉन्फिडेंस आया कि चलो मैं सबको ज्वाइन कर सकता हूं। मैंने एक करके 14-15 लोगों से बात की, 13 लोग तो तुरंत रेडी हो गए, तो मैंने तुरंत फिर उनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको रिक्वेस्ट किया कि सर एक जूम मीटिंग कर लेते हैं। आपने भी तुरंत बोला सर कभी भी कर लो, मुझे आधा घंटा पहले बोलो बस। सो दैट डे आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि चलो अभी हम लोग एकदम सक्सेसफुली सब कुछ कर लेंगे। एंड थैंक गॉड कि ये जो मेरा एक ट्रायल था, एक एक्सपेरिमेंट था, वो सक्सेसफुल रहा, बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहा। एंड विथ ऑल दिस आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, विद द फोल्डेड हैंड्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन for joining the course, and all the best. मिलते हैं। Hello guys, good night, take care, stay in touch. Okay, चलो bye. Bye sir, thank you. Bye bye sir, bye bye. अच्छा, मुझे लगता है जितने लोग हैं उसमें शायद सीरीन को कुछ बोलना है, कब से वो बोल नहीं पा रही है, तो अभी फलक सर को जरा जल्दी थी इसलिए वो गए, लेकिन आप बोल सकते हो सीरीन प्लीज। एक्चुअली उन्होंने उनका कांटेक्ट नंबर ईमेल आईडी दिया था, बट नेटवर्क की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया, और अभी चैट दिख नहीं कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी। सो आई वाज आस्किंग हिम टू रीसेंड इट अगेन। ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं शेयर कर देता हूँ तुरंत। ओके, थैंक यू सो मच। 920720463 मिल गया? Yeah, thank you, sir. Okay. Okay, chalo, thanks a lot and bye bye. Thank you, sir. Bye bye.